Hello dear students, welcome to Dakshina E-Classroom and let's start our second lecture of thermodynamics. And last lecture जो discuss करी थी हमने we have discussed many terms related to thermodynamics like open system, closed system, then state function, path function, intensive property, extensive property and all those things. Clear? So today we are going to discuss different process in thermodynamics. We have different processes like I'll tell you adiabatic process, isothermal process, isochoric process, isobaric process, cyclic process. All this five we are going to discuss now. Clear? So first of all, start with different processes we are going to start. So the first process we are going to discuss is, first one is isochoric process. Isochoric process. What does it mean? Volume change in this process is zero. Isochoric process means volume change in the whole process is zero. So if you are what you are saying, change in volume change is zero. So what you can say, delta V or V2, that is the volume 2 minus V1 is zero. So no changes, volume, this delta V is always zero in isochoric process. So if you want to put this data on graph, how it will look like, ये दिखेगा if you want to draw the curve of P versus V. So this is P, this is V. V, that is the volume for every point of time, even though you are changing the pressure, volume remains constant. So what you are getting a straight line curve, right? Straight line curve, and this is along y-axis or P. So what you can say, for every point of pressure your volume is constant. So from I think अभी तक आप लोग है ग्राफ से काफी familiar हो चुके हो. So understanding this graph is not a big deal. Okay, so this is isochoric process, tells you that the volume change in the process is zero. No volume is getting changed. Okay. Now after that, isobaric process. Isobaric process means, in isobaric process pressure change is zero. Pressure change is zero. Means delta P remains zero. Means P1 is equal to P2 is equal to P3 or so on. So if you want to draw the graph, if you want to draw the same graph like P versus V, P versus V, what you will get, this is P, this is V. So P remains constant. You will see there is a straight line along x-axis. every volume के लिए आपका प्रेशर क्या है, प्रेशर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट रह जा रही है. ठीक. So this is all about isobaric process. And then after that we have something called isothermal process. Isothermal. See, iso means same, thermal means temperature, iso means same, baric represent pressure. ठीक है. So isothermal pressure process. Isothermal process means आपका टेम्परेचर क्या होगा, एवरी टाइम आपका टेम्परेचर होगा उस प्रोसेस के दरमियान, आपका जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट हो जा रहा है. ठीक है. सो आपका क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर कांस्टेंट. ठीक है. टेम्परेचर यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो. टेम्परेचर कांस्टेंट हो जा रहा है. यहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है. अगेन लेट्स ड्रॉ दैट P versus V curve. Do you have any idea the curve looks like? Hyperbola, rectangular hyperbola. Okay, you may be knowing this from the knowledge of your gaseous state. We have seen this type of graph in our gaseous state. ठीक है. अगर आपने देखा है तो ऐसे प्रॉब्लम भी आप सॉल्व किए ही होंगे. प्रॉब्लम कैसा प्रॉब्लम,
P versus V curve. This is for temperature 1. This is for temperature T2. This is for temperature T3. You have to arrange this again pressure. This is volume. What you have to do, you have to arrange increasing order of the temperature. Which temperature is higher, which temperature is lower. And I have told you to solve this type of problem. इस प्रकार के प्रॉब्लम को, ग्राफिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से आप उसके ऑर्डर को लिखिए, फिर आप वीडियो यहाँ देखेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक है। यू नो PV is equal to nRT, correct? You know PV is equal to nRT. So what I am going to do is I am going to fix it. What? Volume. Okay, I am going to fix the volume. तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। क्या स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? थोड़ा सा यू हैव टू टेक दैट दिस इज स्ट्रेट लाइन। सो मैंने क्या एक स्ट्रेट लाइन फिक्स किया है। सो इस पार्टिकुलर वॉल्यूम पे ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर T3 है। सबको क्लियर है? और इस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर P1 है, प्रेशर P2 है एंड प्रेशर P3 है। क्लियर टू एवरीवन? सो वी हैव प्रेशर P1, प्रेशर P2, प्रेशर P3. Is this clear? Now come to gases. Ideal gas equation. You have put volume constant, number of mole constant, R constant. Clear? So can you say P is proportional to T? You know it from the ideal gas equation. Clear? So P is proportional to T. P ज़्यादा तो T ज़्यादा, P कम तो T कम. Come, let us do some mathematics. Let us do this. Let us see this axis. यहाँ जीरो से शुरू करते हैं और जब जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं our values in numerical क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है. So what you can say that P1 is the smallest value, then comes P2 and then comes P3. क्या ये आप बोल सकते हो? Mathematics, basic mathematics. P is proportional to T. P अगर ज्यादा तो T ज्यादा, P कम तो T कम। यानी कि क्या आप बोल सकते हो कि P1 अगर कम है तो T1 सबसे कम होगा, then T2 आएगा and then T3 आएगा। क्या ये आप बता सकते हो? तो क्या मैंने ऑर्डर में अरेंज किया कि नहीं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर T1 सबसे कम होगा, then T2 and then T3। क्लियर? सो इस तरीके से आप प्रॉब्लम कर सकते हो। कैसे? आप एक यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। सिर्फ दो तरीके हैं, आप चाहते तो ऐसे भी ड्रॉ करते, प्रेशर को कांस्टेंट कर लेते, प्रेशर को कांस्टेंट कर लेते। सो प्रेशर कांस्टेंट, सो V इज प्रोपोर्शनल टू T। यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करते, यहाँ पे आपको 1 आता, यहाँ पे 2 आता, यहाँ पे 3 आता, तो आप क्या करते? V1 सबसे छोटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग T1 सबसे छोटा। तो इस तरीके को अगर आपको समझ में नहीं है तो फिर से वीडियो पॉज कीजिए, फिर से देखिए। मैंने क्या बोला? यू हैव टू हैव पेशेंस। आपको पेशेंस होना बहुत ही आवश्यक है थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। देन व्हाट इज द स्लोप फॉर दिस पार्टिकुलर कर्व? हम इस पार्टिकुलर कर्व के लिए स्लोप क्या बना सकते हैं? व्हाट इज द स्लोप? स्लोप आपको पता है ना, दिस इज V, दिस इज P। आपको अगर x और y, यू नो x और y और x एक्सिस होता है तो स्लोप क्या बोलते हैं? x by y, या सॉरी dy by dx बोलते हैं, करेक्ट? या y by x बोलते हैं। जैसे दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। सिंपल सा मैथमेटिक्स। व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज नथिंग बट डेल्टा y by डेल्टा x, या स्मॉल छोटा लिखता है तो dy by dx। ये स्लोप होता है। मैथमेटिक्स सबको आता है। सो अगर स्लोप इसकी बात करेंगे क्या बोलेंगे? dp by dv। x की जगह v है इसीलिए मैंने v लिखा, और सिंपल सा, कोई इसमें कोई गुण रहस्य नहीं छुपा है। यहाँ y था, यहाँ p था, तो मैंने p की जगह y की जगह p लिखा और x की जगह v लिखा। काम मतलब कुछ भी नया नहीं किया। ठीक, ओके। अब बताएंगे इस पार्टिकुलर कर्व का स्लोप कैसे निकालेंगे। तो व्हाट वी नो
PV is equal to constant Boyle's law. Remember, PV is equal to constant for this isothermal process. क्या है Boyle's law? Pressure is inversely proportional to volume for given temperature, given constant temperature. यानी कि isothermal की भी बात वो करना चाहता था Boyle's law. ठीक है, ठीक है. तो क्या है, यहां से आप निकालो, क्या निकालोगे यहां से निकालो भैया, क्या सिंपल है, यहां से आप निकालो dp बाई dv. क्या होगा बताइए, dp बाई dv क्या होगा, p बाई v माइनस ऑफ p बाई v, माइनस ऑफ p बाई v. ठीक है, सो माइनस ऑफ p बाई v है, तो माइनस यानी कि नेगेटिव. सिंपल सी बात है, आपका ये जो स्लोप होता है पॉजिटिव होता है, जब स्लोप ऐसे हो जाता है तो नेगेटिव होता है. तो आप देखोगे तो हर जगह पे स्लोप कुछ ऐसा ही है, नेगेटिव स्लोप. ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप है, तो आपका इसलिए आपका नेगेटिव साइन यहाँ पे देखिए, आपका कहाँ है, नेगेटिव साइन आपका आ रहा है. ठीक है, कहाँ नेगेटिव साइन आपका आ रहा है. सो dp बाई dv इज कमिंग टू बी माइनस p बाई v. ठीक है, तो अगर आपको प्रेशर का वैल्यू और वॉल्यूम का वैल्यू पता है कहीं पे, तो आप बता सकते हो कि स्लोप क्या हो सकता है. एग्जैक्टली आपको पूछा नहीं जाएगा कि भाई क्या, मैं ये बता रहा हूँ कि ये माइनस साइन बताता है कि एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका क्या स्लोप नेगेटिव है. क्लियर, ओके. तो ये हो गई बात है किसकी, आइसोथर्मल प्रोसेस की. इसके बाद एक और अच्छा वाला प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है, सो इस प्रोसेस में क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट था, यहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट था. इसमें क्या होता है, जो Q है दैट इज हीट ट्रांसफर. सो मैं क्या बोलूंगा, नो हीट ट्रांसफर. यानी कि अगर आप Q हीट की बात करते हो तो Q चेंज इन Q किसी सिस्टम की बात है, तो सिस्टम का हीट कम होगा या ज्यादा होगा जब वो हीट ट्रांसफर करेगा. या तो बाहर से हीट लेगा, सिस्टम सराउंडिंग से हीट लेगा, या सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा, तभी तो उसकी हीट में चेंज आएंगे. तो क्या है, नो हीट ट्रांसफर, यानी कि डेल्टा Q चेंज इन हीट इज इक्वल टू जीरो. करेक्ट, चेंज इन हीट इज इक्वल टू जीरो. और इस प्रोसेस के लिए जो आपका इक्वेशन होता है वो आइसोथर्मल के ही तरह होता है, बट PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो क्या है, देयर इज अ बिट डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस है. यहाँ पे V टू पावर 1 है, वहां पे V टू द पावर गामा है. यानी कि अगर गामा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस आइसोथर्मल बन जाएगा. ठीक है, और इसका जो कर्व होता है वो भी कैसा दिखता है, आपका हाइपरबोला जैसा ही दिखता है. हाइपरबोला जैसे ही दिखता है. तो आप बोलोगे भाई साहब ये क्या बोल दिया आपने, अब तो हम अगर दोनों कर्व एक साथ दे दिया तो कंफ्यूज आ जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा कि कौन आपका एडियाबैटिक है कौन आइसोथर्मल है. चिंता मत कीजिए, उसका भी इलाज बताते हैं. PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो dp बाई dp यानी कि स्लोप का जो वैल्यू आया था माइनस p बाई v आया था. अगर आपको स्लोप की डिफरेंट वैल्यू आ जाए तो आपको डिफरेंशिएट करने आ जाएगा. तो व्हाट इज द स्लोप फॉर द एडियाबैटिक कर्व, यानी कि dp बाई dv दैट इज स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ गामा ऑफ p बाई v. इसका भी स्लोप नेगेटिव होता है, पर एक नया टर्म आ गया, एक नया जो आ रहा है जो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बताएगा, दैट इज माइनस ऑफ क्या है, गामा इंटू p बाई v. तो आप क्या बोल सकते हो, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक क्या हो जाएगा, देखिए स्लोप ऑफ एडियाबैटिक क्या है, माइनस गामा p बाई v. सो मैंने लिखा गामा लिखा, और माइनस p बाई v क्या है, माइनस p बाई v इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल. सो स्लोप ऑफ गामा मल्टीप्लाई विथ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल.
थर्मल। यानी कि जब दो कर्व एक साथ आ जाए, जब दोनों कर्व एक साथ आ जाए, जब दोनों कर्व एक साथ आ जाए तो कैसे बताएंगे? तो चलिए आपके लिए मैं दोनों कर्व को एक साथ बना लेता हूं, ठीक है। सो दिस इज P, दिस इज V, और वी हैव डिफरेंट प्रोसेस। आपको एक्सपेंशन प्रोसेस पता होगा। एक्सपेंशन मतलब क्या कि वॉल्यूम इंक्रीज करती है। कंप्रेशन प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम डिक्रीज करती है। सो लेट्स सी दिस एक्सपेंशन प्रोसेस। एक्सपेंशन का मतलब क्या है? वॉल्यूम इंक्रीज करेगी। देखिए क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या है? दो डिफरेंट प्रोसेस है। ये क्या है? दो डिफरेंट, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज P। सिर्फ P से A एक अलग प्रोसेस है, P से B एक अलग प्रोसेस है, दोनों हाइपरबोला है। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि विच वन इज योर एडियाबैटिक एंड विच वन इज योर आइसोथर्मल, ठीक है। तो वही सिंपल सा आप वो कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। इसका क्या है, मान लीजिए इस पॉइंट पे मैंने ड्रॉ किया क्या? स्लोप। इसी पॉइंट पे मैंने इसका ड्रॉ किया स्लोप, ठीक है। तो किसका स्लोप ज्यादा आ रहा है, किसका स्लोप कम आ रहा है? तो आपको समझ में आ जाएगा, ये आपका स्लोप है, ये जो स्लोप है वो कम है, ये जो स्लोप है ज्यादा है, ठीक है। तो जिसका स्लोप कम होता है वो क्या होता है? आपका स्लोप कम वाला आइसोथर्मल और स्लोप ज्यादा वाला आपका एडियाबैटिक। तो ये बंदा हो जाएगा आपका, ये बंदा हो जाएगा आइसोथर्मल, ये बंदा हो जाएगा आपका एडियाबैटिक। क्लियर? सिमिलरली अब बोलो सर जी इस तरीके से तो स्लोप का चक्कर मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो मैं बोलूंगा चलो एक ट्रिक दे देता हूं। क्या सा ट्रिक? आप उंगलियां को यहां पे रखो, अंगूठे को, और घुमाओ। जो पहला लाइन आएगा वो आइसोथर्मल, जो दूसरा लाइन आएगा वो एडियाबैटिक। काम खत्म। बोलेंगे सर हमेशा शुरू होगा, हमेशा ट्रू होगा ये? जी हाँ। आपके लिए मैं एक और कर्व बना लेता हूं। आप हमारे अच्छे दोस्त हो, तो मैंने एक और कर्व बनाया। ये है आपका P, ये है आपका V, और अब दिस इज का एक्सपेंशन प्रोसेस। आई एम गोइंग टू ड्रॉ द कंप्रेशन प्रोसेस। तो कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होगी, तो वो वॉल्यूम कम हो गई। दिस इज अगेन P, A, B। प्रोसेस नंबर 1 P to A, प्रोसेस नंबर 2 P to B, P to B। अब बोलोगे सर जी क्या उंगली वाला आपका हेल्प करेगा? तो जी हाँ, उंगली को यहां रखिए और ऐसे घुमाइए। जो पहला आएगा वो आपका क्या होगा? आइसोथर्मल। सो दिस इज योर आइसोथर्मल। और जो दूसरा आया दिस इज योर एडियाबैटिक, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से बता सकते हो कि कौन सा जो प्रोसेस है आइसोथर्मल है, कौन सा प्रोसेस आपका एडियाबैटिक है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपको हल्का सा पता होना चाहिए। ये जो चीजें पता होना चाहिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। इसका यूज भी आप आगे चल के करने वाले हो, ठीक है। मैंने आपको स्लोप निकाला, सिंपल है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। आपको पता है ना पीवी गामा को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा? डीपी, मतलब जो सिंपल सा डिफरेंशिएशन आपको, मैं इसलिए मैंने वो प्रोसेस वहां पे लिखा नहीं कि क्यों कैसे उसको डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए काम की चीज नहीं है तो मैंने आपको ये बता दिया, ये काम की चीज है आपकी, इसको समझना है, ठीक है। ओके, तो आपको क्या पता चल गया कि एडियाबैटिक प्रोसेस का जो बेसिक इक्वेशन होता है पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट। थर्मल का, आइसोथर्मल का होता है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका स्लोप होता है माइनस पी बाई वी, इसका स्लोप होता है माइनस गामा पी बाई वी, ठीक है। इन दोनों में किसका स्लोप ज्यादा होता है? एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है, आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है। सिंस दोनों आपके हाइपरबोला होते हैं इसलिए आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा कर्व कौन सा है, किसके लिए है। तो मैंने आपको एक बताया, ट्रिक बताया कि आपको क्या करना है, अपने थंब को यहाँ पर रखना है और घुमाना है। जो पहला प्रोसेस आएगा वो आइसोथर्मल होगा, जो दूसरा प्रोसेस आएगा वो एडियाबैटिक होगा। सिमिलरली यहाँ पे थंब को रख के घुमाना है। जो पहला प्रोसेस आया वो आइसोथर्मल बन गया, दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल, दिस प्रोसेस इज योर एडियाबैटिक प्रोसेस। अब बोलोगे सर ये दो अलग अलग है, सिंपल सी बात है। दिस प्रोसेस, यहां से अगर आप ऐसे आएंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम कम हो रही है, यानी कि कंप्रेशन हो रहा है। या मान लीजिए आप यहां से इधर आ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, यानी कि आपका एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक। इसको आपने देखा, इसको आपने लिखा। इसके बाद एक और प्रोसेस की बात करते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है, समझ में आ ही रहा है कि साइकिल जैसा होगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, सो इफ यू ड्रॉ द कर्व P वर्सेस V में क्या होगा?
क्या है पी? साइक्लिक कर्व का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कोई स्टार्ट किया था ए से, तो वो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से वापस ही आ गया। क्लियर? डी से वापस गया, यानी कि क्या है स्टेट, आप ए से बी स्टेट में गए, बी से सी स्टेट में, डी से फिर से वापस से ए स्टेट में, यानी कि आपने अपना स्टेट जो था आप अपने पुराने स्टेट में आ गए। आपका स्टेट क्या हो गया? फिर से वही हो गया है। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, आप घुमा फिरा के वापस से उसी स्टेट में आ जाते हो। ठीक है, तो आपका जो स्टेट पैरामीटर्स होता है वो वापस से वही वैल्यू बताता है। ठीक है, जैसे आपने P वर्सेस V का ग्राफ बनाया है, तो क्या है, आप सब इस पॉइंट, इस प्रेशर और वॉल्यूम से शुरू किए, तो आप क्या किए, वॉल्यूम को इंक्रीज किया, फिर वॉल्यूम को डिक्रीज किया, फिर घुमा के वापस से यहाँ आ गए। तो इस पार्टिकुलर, अब इस पॉइंट को फिर से देखिए, ये दुनिया भर के इसके प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर और हर पॉइंट पे इसकी अलग अलग वैल्यूज है, अलग अलग प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज है, यानी कि स्टेट पैरामीटर्स की अलग अलग वॉल्यूम वैल्यूज आ रही है। प्रोसेस के दरमियान अलग अलग वैल्यूज आ रही है, पर जब प्रोसेस खत्म हुआ, जब प्रोसेस वापस से उसी जगह पे आ गया, तो व्हाट इज द अगेन प्रेशर एंड वॉल्यूम वैल्यूज सेम एज इनिशियल। So initial state parameters are same as final state parameters. ठीक है, initial state parameters same as फाइनल स्टेट पैरामीटर्स। तो क्या है आपका साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, क्या कुछ जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं आप देख रहे हो, जो पूरा घूम के आ गया, पूरा घूम के आने के बाद क्या आपके पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई। ठीक है, आपके पैरामीटर्स की वैल्यू क्या हुई? चेंज ही नहीं। जैसे इसमें देखो क्या है, यहां से यहां आया, तो क्या पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज हो गई? यहाँ पे P और V की वैल्यू जो है और यहाँ P और V की वैल्यू है वो अलग अलग है। ठीक है, सो आपको क्या बोल सकते हो कि इनिशियल स्टेट है दैट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट। ठीक है, जो इनिशियल स्टेट है वो आपके फाइनल स्टेट के बराबर है। तो आप क्या बोल सकते हो कि चेंज इन स्टेट वो क्या होगा? जीरो होगा। क्या बोलोगे? चेंज इन स्टेट, मैं लिख दूं यहां पे कि चेंज इन स्टेट इज जीरो, बिकॉज फाइनल इज सेम एज इनिशियल, फाइनल इज सेम एज इनिशियल। पर याद रखिए हम स्टेट वेरिएबल्स की बात करते हैं, स्टेट फंक्शन की बात करते हैं, जो पाथ फंक्शन होंगे वो तो अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा चीजें ध्यान में रखेंगे, जो पाथ पे जैसे ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है, तो जो पाथ पे डिपेंड करते हैं वो तो अलग अलग पाथ है, तो वहां पे वो चीजें अलग है, जिसकी बातें भी हम करेंगे पाथ फंक्शन की। तो आपको मैंने आज क्या है अभी जो है प्रोसेस बताया, डिफरेंट प्रोसेस की बातें करी है। जैसे हमने आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल की बात की, देन एडियाबैटिक प्रोसेस की बात की और साइक्लिक प्रोसेस की बात की। ठीक है, तो इन प्रोसेस की बात की है, जल्दी से आप इन्हें नोट कीजिए। इसके बाद हम डिफरेंट अदर थिंग्स की बात करेंगे। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स की बात करेंगे। और अब जो है मजा आएगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस में, फिर से बोल रहा हूं आपको पेशेंस होना बड़ा ही आवश्यक है। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।